What's an NFT? NFT और नॉन फंजिबल टोकन। आई एम श्योर इसके बारे में आपने सुना ही होगा, या तो आपने इंटरनेट पे देखा होगा या आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा NFT के बारे में, कि कैसे किसी ने लाखों में एक NFT बेच दी। और जब आपने उस NFT को जाके सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा यार इट्स जस्ट एन डिजिटल इमेज, ये तो एक कोई कार्टून टाइप है या फिर कोई जस्ट एक इमेज है जिसको लोग NFT बोल रहे हैं, उसको लोग लाखों में खरीद रहे हैं। $23 million for only the video, $28.985 million. Days that the WikiLeaks founder has been imprisoned for $69 million. Merge, $91.8 million. ये सेम थॉट मेरे दिमाग में, फिर मैंने NFT के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड दिस वीडियो इज अबाउट द डार्क साइड ऑफ द NFT, the real side of the NFT, not what the social media. The whole thing is a promise that you can get rich for free. YouTube It's the biggest technology that's ever happened in the history of life. and the celebrities that they show you. It's not about that. Ape too. We're in the same community. We're both apes. Like how easy it is to make NFTs and sell them. Like even a common man like you can make an NFT and sell it in millions of dollars, or let's say thousands of dollars. Largest Beeple, the final bid, $69 million. Oh my god. That's not the case. इस एक NFT वर्ड को इतना ज़्यादा हाइप किया गया है कि लोगों को इसकी जो रियल साइड है, जो इसका सच है, वो पता ही नहीं है। But according to me, I think it's a game of Russian roulette, and you will never know when the gun is gonna fire. So join me in this journey where I expose the real side, the dark side of the NFT. Digital artist Beeple, the final bid, $69 million. Oh my god. This is the time when I came to know about NFTs. इस सेल ने मेरे दिमाग को हिला डाला। कैसे एक बहुत ही सिंपल दिखने वाली इमेज $69.3 मिलियन में सेल कर सकते हैं। फिर मैंने NFTs के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, क्रिप्टो किटीज के बारे में मुझे पता चला। So how many of y'all have heard of this new game that came out recently? I don't know how do we actually describe what these things are? And today we're talking about CryptoKitties. सो क्रिप्टो किटीज के बारे में आपको बताता हूँ मैं। ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप कैट्स को ब्रीड कर सकते हो, एंड अगर आपकी कैट की ब्रीड न्यू या यूनिक है तो उसको आप सेल कर सकते हो, और मे बी यू विल गेट सम गुड अमाउंट फॉर इट, बट इट्स जस्ट अ गेम ऑफ गैम्बलिंग। जब मैंने इस गेम को पूरे डीप तरह से पढ़ा, मुझे समझ में आया कि ये गेम एक गैम्बलिंग गेम है। लाइक फॉर स्टार्टर्स, इस गेम को एंटर करने के लिए आपको एक एंट्री फीस देनी है, और वो एंट्री फीस है मिनिमम 0.04 इथेरियम। इंडियन रुपीज में उसको बोला जाए तो 6,000 रुपीज जस्ट टू एंटर द गेम। Digital beanie babies. Now, if that sounds a little weird, it's because it is. And maybe you will get lucky, find a cat, breed it, and then maybe you'll get a unique breed out of it, and then maybe you will make some money. उस टाइम पे जब ये गेम बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पे था तो इसको बहुत ज़्यादा हाइप अप किया गया, सेलिब्रिटीज ने इसको प्रमोट किया कि play crypto kitties and you can sell your crypto kitty for millions of dollars. $2,700 for this little guy. Why use these CryptoKitties? $450,000 for this ugly mug? The same reason you started out with the cryptocurrency, to make money. Guys, this is a potential way to make some money. This is insane. Most users are trying to breed their cats at the moment, not just because it's kind of cool, but also because they can be very expensive. There are thousands of people playing on the CryptoKitties website. फिलीपींस में जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, बैंक से लोन उठा के वो लोग क्रिप्टो किटी खेल रहे थे। Here to apply scholarship. I want this scholarship because I want to earn more. I can play 6 to 12 hours a day. I treat this as a job, not just a game. I want to help my family on their expenses and save up money for my tuition in college. So I want to be a scholar so that I can meet the needs of my family. Now, in present, they've lost all their money and they're working as a daily wage laborer. And the value of CryptoKitties is 99.9% down from its original value. तो NFTs के बारे में जानने के लिए मुझे आपको थोड़ा पास्ट में ले जाना पड़ेगा। I'm sure आप सब लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आपको पता है कि बिटकॉइन इन्वेंट क्यों हुआ था, कब हुआ था और किसने उसको इन्वेंट किया था? So ये बात है 2008 की, when USA market was in recession.
Official, we are in a recession. The research group that makes that determination made it today. Down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down. उनका पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया था. हाउसिंग मार्केट वाज डाउन. लोग घर खरीदने से डर रहे थे. The consumers strangled. They're watching their housing prices go lower. They're watching their 401ks get diminished. You created the mess we're in. Now you're saying sorry. उस टाइम पे एक मिस्टीरियस बंदे which goes by the name of Satoshi Nakamoto, उसने अपने क्रिप्टो मेलिंग लिस्ट में लोगों को मेल करना स्टार्ट किया कि मैं एक ऐसी करेंसी डेवलप कर रहा हूँ, एक डिजिटल करेंसी which is peer to peer and which nobody can track. And it's a completely digital currency. It's free from all kind of policies of the government, the control of the government. So January 3, 2009, that was the time when Bitcoin was launched. Satoshi Nakamoto launched the Bitcoin, and his vision was that all the transactions in the world will happen by Bitcoin only, and all the physical currencies that we use now, they will be obsolete. उसको बिल्कुल कोई यूज नहीं करेगा, सब Bitcoin में ट्रांसैक्ट है. ये उसका विजन था. बट आपको पता है कि बिटकॉइन यूज करना स्टार्ट किसने किया, उसको ट्रैक्शन किसने दी, उसको इतना पॉपुलर किया किसने? एंटी स्टेट एक्टिविस्ट्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस. क्योंकि इन सब के लिए बहुत ही अच्छा वे था ये, क्योंकि बिटकॉइन ट्रैक नहीं हो सकता, वो इजीली अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और कोई उनको ट्रैक नहीं कर पाएगा. तो इन लोगों ने इसको बहुत पॉपुलर किया, एन इलीगल वे ऑफ ट्रांसैक्टिंग. उसके बाद जब सैटोशी नाकामोटो को पता चला कि जिस विजन से उसने बिटकॉइन को बनाया था से वो दूर जा रहा है, तो उसने अपनी जितनी भी होल्डिंग्स थी बिटकॉइन की बेची एंड ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ इंटरनेट. और आज तक किसी को नहीं पता कि कौन सैटोशी नाकामोटो था, एंड ही वाज एन अननोन पर्सन. उसके बाद बिटकॉइन को सेलिब्रिटीज ने प्रमोट करना स्टार्ट किया. सेलिब्रिटीज के माइंड में ये चीज बिठाई गई कि बिटकॉइन इज द फ्यूचर, एंड उसके बाद बिटकॉइन धीरे धीरे कॉमन लोगों के पास आने लगा. And no one was using Bitcoin for transactions. वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए यूज कर रहे थे, या बिटकॉइन कोई इलीगल ट्रांजैक्शन में यूज हो रहा था. Bitcoin was doomed to fail from the start because of the design decisions made by Satoshi Nakamoto. मैं बताता हूँ क्यों. आपके पास एक कार्ड होगा वीजा का, उसमें आप 1700 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सकते हैं. एक कार्ड होगा आपके पास मास्टर कार्ड, उसमें आप 5000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड कर सकते हैं. क्या आपको पता है कि बिटकॉइन में आप कितनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? 7 transactions per second. That's it. दूसरी चीज, it has limited supply, like only 21 million bitcoins are there in this world. तीसरी चीज कि एक बिटकॉइन को बनाने में इतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है दैट आप बिलीव भी नहीं कर सकते. मैं आपको बताता हूँ, एक बिटकॉइन बनाने में 1449 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज. अब मैं आपको उसको अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी एक इंडियन हाउस होल्ड 60 डेज में यूज करता है. एंड दिस मच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू मिंट 1 बिटकॉइन, एंड देयर आर 21 मिलियन बिटकॉइंस इन सप्लाई. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड. इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना आपने कहीं न्यूज़ सुनी होगी, ना कोई सेलिब्रिटी आपको बताएगा कि कितनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है एक बिटकॉइन को मिंट करने में. एंड यू कांट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज released just to mint 1 Bitcoin. तो जब उनको लगा कि Bitcoin is starting to fail, जो crypto engineers है, they came up with a new idea, a very brilliant idea, कि कैसे लोगों को इस पे hook रखें. They came up with an idea of colored coins. Colored coins makes trading as user-friendly and efficient as a Bitcoin payment. By coloring a Bitcoin, you turn it into a token that represents anything you want to trade. Company stocks, gold bars, or even a house or a car. In 2012, colored coins, just like Bitcoin, it's a waste of time and energy. मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में समझाता हूँ कि colored coins होते क्या है, उनका यूज क्या है, या उनको किस विजन से लॉन्च किया गया था. Suppose you are a car rental company. आप अपनी कार्स रेंट पे देते हैं, आपके पास बहुत सारी कार्स हैं. कलर्ड कॉइन्स का यूज जो कि लोगों को पिच किया गया कि आपके पास कार्स हैं, आप हर एक कार का एक कलर्ड कॉइन लो, उसको आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डालो. जो कलर्ड कॉइन होगा वो इनक्रिप्टेड होगा आपकी कार के लिए. आप अपनी कार को कॉन्फ़िगर करवाओ उसके लिए और उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे डालो. लोग आपकी कार रेंट करनी होगी, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, उस कलर्ड कॉइन को खरीदेंगे
उस कलर्ड कॉइन को खरीदने के बाद एक ऐप के थ्रू वो आपकी कार को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद वो कार को जितने टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं यूज करेंगे एंड देन दे कैन सेल द कॉइन बैक और आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा था आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कितने सारे लूप होल्स, कितने सारे फॉल्ट्स हैं। इसको बहुत हाइप अप किया गया, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशंस कराए गए कलर्ड कॉइन से कि लोग इसको आगे खरीदें। Now, instead of just sending cash through the Bitcoin network, you can use it to trade anything you want. This story कि अगर आपने कोई कलर्ड कॉइन खरीद लिया है, आप अगर कार रेंटल कंपनी हो और आपका जो कलर्ड कॉइन है किसी ने खरीदा, what if he is not selling it back? उसका एक्सेस तो उसके पास है, या जिसने खरीदा है ये कलर्ड कॉइन की जो भी वैल्यू है वो बिटकॉइन पे डिपेंड करती है। अगर उसने ज़्यादा पैसे में खरीदा होगा और वो जब उसको बेच रहा है तो उसकी बिटकॉइन की वैल्यू कम होगी, फिर क्या, जिसने खरीदा वो लॉस में। या ये बहुत इजीली हैक हो सकता है। कलर्ड कॉइन आपका किसी ने चुरा लिया, आपने बहुत सारी न्यूज़ भी सुनी होगी क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में। कलर्ड कॉइन किसी ने चुरा लिया तो आपकी कार, यू आर लॉक्ड आउट ऑफ योर कार, योर ओन कार। कैन यू इमेजिन दैट? एंड ऑब्वियसली ये हुआ, कलर्ड कॉइन्स आल्सो फेल, किसी ने उसको यूज नहीं किया। देन अगेन द साइकिल रिपीट्स। क्रिप्टो इंजीनियर्स ने एक नया वे निकाला, एक और ब्रिलियंट है कि we'll develop something different, and then they came up with an idea of NFT. ये जो आप अपने आसपास आजकल डिजिटल आर्ट देख रहे हैं, ये कलर्ड कॉइन्स के बाद आए इन 2014। सो उन्होंने NFT लॉन्च किया, बट द सेम प्रॉब्लम वाज विद NFTs आल्सो इन द स्टार्ट कि वो बिटकॉइन पे डिपेंडेंट थी और उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती है। उन लोगों ने उसको इथेरियम बेस्ड कर दिया। तो अभी आप जो NFTs देखते हैं, that is all Ethereum based. And I want to give one to everyone in the audience. Everyone gets an NFT. Yes, everyone. Everyone gets an NFT. Ethereum को बोलना था कि we use less energy, but मैं आपको उसकी भी रियलिटी बताता हूँ कितनी less energy यूज होती है। To mint one NFT and to sell it, this whole transactions, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है that is 240 किलोवाट आवर्स, और ये इलेक्ट्रिसिटी एक इंडियन हाउस होल्ड 15 डेज में यूज करता है। और अभी 11 मिलियन NFTs आर इन सप्लाई, और भी NFTs बनती जा रही है क्योंकि लोगों को इसकी रियलिटी नहीं पता है, उसको बस पॉपुलर किया जा रहा है सेलिब्रिटीज के थ्रू, एंडोर्समेंट्स के थ्रू। Anything, it always just defaults to how much money. और एक NFT को मिंट करने में और सेल करने में जो CO2 एमिट होता है, that is 211 kg of कार्बन डाइऑक्साइड। एक NFT की CO2 को नेगेट करने में, उसको इस एटमॉस्फेयर से हटाने में you need 3.5 fully grown trees. So you can imagine how much carbon dioxide is emitted just to mint one NFT. The average footprint of an artist NFT is 10 megawatt hour, 6 tons CO2, whereas the median is 3 megawatt hour, 2 tons CO2. That makes the average NFT footprint equivalent to a European resident's electricity consumption for 3 years, or driving for 30,000 kilometers. So for all the climate activists out there, this is your main focus. NFTs are your real enemy. मैंने आपको पीपल के बारे में बताया, उसकी डील के बारे में बताया स्टार्टिंग में। तो जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा और डीप में जाने लगा, और फिर मुझे इस ट्रांजैक्शन की रियलिटी पता चली कि ऐसे आर्ट को इतने सारे पैसों में क्यों खरीद सकते हैं। जस्ट एन आर्ट, मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ इंटरनेट जाके। इवन आप अगर जाओगे पीपल्स आर्ट 4K आप भी डाउनलोड कर सकते हो उसको, तो उसके लिए कोई भी $69 मिलियन क्यों देगा। Purchased a collection of 5,000 pieces of digital art that anyone can easily see online for $69 million. जब मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये पीपल की जो आर्ट है जिसने खरीदी उसका नाम है मेटा कवर ने पीपल से इस डील से पहले कुछ दिन पहले एक और डील करी थी। उसने पीपल की आर्ट खरीदी थी इन $2.2 मिलियन, और पीपल इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इस आर्ट को मैं लूँगा और एक वर्चुअल म्यूजियम बनाऊंगा जिसमें लोग अपने VR हेडसेट के थ्रू विजिट कर सकते हैं और आपकी आर्ट देख सकते हैं। एंड उसने मेटा कवर ने पीपल को $2.2 मिलियन दिए। दे मेड द वर्चुअल म्यूजियम एंड दे रिलीज्ड अ कॉइन B20। उसमें पीपल को 2% ऑफ द सप्लाई मिली। उसके बाद ये डील हुई जिसमें $69 मिलियन में पीपल की ये आर्ट खरीदी गई। पीपल वर सरप्राइज, दे वर शॉक्ड कि ऐसी डील हो भी सकती है। दे स्टार्टेड सर्चिंग ऑन इट, तो उनको पता चला कि मेटा कवर ने इसको खरीदा एंड दे हैव अ वर्चुअल म्यूजियम
and if you want to see the art you need a B20 coin. People started buying B20 coin. उससे B20 जो coin था उसकी वैल्यू एकदम drastically increase हुई and Metacoin और people उन्हें अपनी जो holdings थी बेच दी. They took the profit and the B20 coin as of now is 99.9% down. Now you know कि वो डील को कैसे किया गया था. जो भी B20 coin से जो भी प्रॉफिट हुआ था वो लिया गया था और they got the money back. It was a pump and dump scheme और ये बहुत सारी चल रही है. एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के बारे में मैं बताता हूँ, आप लोग जानते भी होंगे उसको, लोगन पॉल. People making a lot of money. लोगन पॉल ने अपने YouTube चैनल पे एक कॉइन है Ding Doink. Ding Doink Telegram, it's me, Logan Paul. Now I know what you're thinking. Logan, what the fuck are you doing here? I'm doing the same thing as you. Holding my Doink. That's what I'm doing. This is a shit coin I believe in. It's my favorite one, to be honest. Ding Doink is so much more than a meme coin. It's a multi-meme. कॉइन को प्रमोट करना स्टार्ट किया कि बहुत ही अच्छा कॉइन है, इसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाएगी, आप इसको खरीदो. लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया, उसकी वैल्यू बढ़ने लगी एंड उसके बाद सडनली इट्स वैल्यू स्टार्टेड ड्रॉपिंग. Mini tokens with zero actual usefulness. Instead, like every other Ponzi token, it's built off nothing but marketing hype, a few celebrity shoutouts, and the eventual sell-off. Now it is 99% down from its original value. उसके बाद लोगों ने रिसर्च करनी स्टार्ट की तो पता चला Logan Paul was involved in that pump and dump scheme. He was given some percentage of that coin और उसको बोला गया था अब इसको प्रमोट करो. जब कॉइन की वैल्यू अच्छी बढ़ गई, प्रमोटर्स ने, फाउंडर्स ने और लोगन पॉल ने अपने कॉइन्स बेच दिए. They took the profit और उससे सफल कौन हुआ? आप जैसे हमारे Guys, they get in early, you pump up their bags, they sell it off. Of one of the greatest, if not the greatest, coin of all time. So it's very important to know कि ये एक बहुत बड़ी Ponzi scheme है. If you give me money in 45 days, I give you 50% more. I guarantee it. This scheme is only made for the rich to make them more rich. आप जैसे हमारे जैसे लोग हम सोचते हैं कि हम NFTs बनाएंगे एंड NFT वैसे फ्री में नहीं बन रही है. NFT के लिए आपको एक फीस पे करनी पड़ती है which comes to around sometimes maybe 0.1 Ethereum which is 15,000 rupees. Sometimes more, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसका कोई वो नहीं. एंड देयर इज नो गारंटी कि आप उस NFT को सेल कर ही दोगे. अभी भी मार्केट में इतनी सारी NFTs हैं जो कि अनसोल्ड हैं और जो NFTs बिकी हैं जिनकी न्यूज़ ने ट्रैक्शन गेन किया उनकी भी सच्चाई में आपको. आप सबने सुना होगा कि जस्टिन बीबर ने एक NFT खरीदी थी, एक बोर्ड एप NFT जिसको बोला जाता है. यू नो इट्स करंट वैल्यू नाउ इट्स $58,000. और आप बुरा मत फील करो जस्टिन बीबर के लिए कि यार इतने बड़े सेलिब्रिटी अगर उसको धोखा दिया जा सकता है तो हम तो हैं क्या. नहीं, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि जस्टिन बीबर को सेम अमाउंट पहले ही क्रिप्टो करेंसी में उसकी वॉलेट में डिपॉजिट किया गया था. $2.4 million was deposited into Justin Bieber's account. उसके बाद उसने वो NFT खरीदी है. तो बोर्ड एप कम्युनिटी जो कंपनी है जिसने ये NFT बनाई थी उन लोगों ने जस्टिन बीबर को पैसे दिए थे और फिर उसने खरीदी थी. These are the transactions of Justin Bieber's wallet. आप देख सकते हो कि इस वॉलेट में कितनी सारी क्रिप्टो डाली गई है जिससे उसने खरीदा है. और एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मे बी आपको NFT के बारे में तभी पता चला होगा. जैक डॉर्सी, द फाउंडर ऑफ ट्विटर, उसने अपना फर्स्ट ट्वीट बेचा था इन $2.4 million. आपको उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो आप शॉक हो जाओगे. इट्स वैल्यू नाउ इज $4. सो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा गेम है. इट्स लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब व्हिच कैन एक्सप्लोड एनी टाइम. आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ दैट हाउ दिस गेम ऑफ NFT इज बीइंग प्लेड, that how the ultra rich people and all these big NFT companies, they take the money from you and then they get rich. And I hope कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को, ताकि उनको भी पता चले NFT के बारे में एंड वो कोई गलत डिसीजन ना लें और NFT में इन्वेस्ट करें. Till then, this is Atul signing off.